Hey guys, this is Gurjap and today we'll begin with power set. तो पावर सेट क्या होता है? सपोज हमारे पास एक सेट है और उस सेट के जितने भी सब सेट्स हैं, अगर हम उन सब का एक कलेक्शन बनाते हैं, उस कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट. तो सपोज हमारे पास कोई सेट है, सेट ए विद एलिमेंट्स 1 and 2. ओके, अब हमें कलेक्शन बनानी है इसके सभी के सभी सबसेट्स की. तो उसके पास कौन कौन के सबसेट्स हैं? नंबर 1, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. Second, singular set 1 is subset of set A. Singular set 2 is also a subset of set A. And there's also another property that every set is a subset of itself. So, I can write this set 1, 2, that is set A, is a subset of itself. So, this collection of all the subsets of set A is called power set of A. ओके अब इसको एक डेफिनेशन वाइज देखते हैं. अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट से ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए एंड पावर सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए, दैट इज पावर सेट ऑफ ए. चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज सपोज वी हैव अ सेट ए विद एलिमेंट्स 1, 2 and 3. वी हैव टू राइट इट्स पावर सेट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके जितने भी सब सेट्स हैं उनका कलेक्शन बनाना पड़ेगा. तो इसका फर्स्ट सब सेट इज एम्प्टी सेट, सेकेंड इज दिस सेट इटसेल्फ 2, 3, देन सिंगुलर सेट 1, सिंगुलर सेट 2 एंड सिंगुलर सेट 3. सिंगुलर सेट 2 एंड सिंगुलर सेट 3. देन वी हैव a set 1, 2, set 2, 3 and set 1, 3. तो ये जो सारे के सारे सबसेट्स हैं इनका जो कलेक्शन है वो होगा पावर सेट ऑफ दिस सेट A. ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से वी हैव अ सेट B with elements A and B. We have to write its power set. So power set of B will be the collection of all the subsets of set B. तो set B के subsets कौन से हैं? Empty set, singular set A, singular set B and the set itself. This collection of all the subsets of set B is called the power set of set B. Okay? एक important point है कि किसी भी power set में every element is a set. Now that we know what power sets are, let's move on to the next topic. So next step is number of elements in power set of set A. Number of elements in power set. So suppose हमारे पास कोई सेट है, सेट A with elements 1 and 3. तो इसका पावर सेट क्या होगा? Collection of all the subset of set A. तो I can write power set of A is equal to empty set, singular set 1, singular set 3 and the set itself. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. बट ये मेथड वर्क करता है सिर्फ स्मॉल सेट्स के लिए. इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं. सपोज सेट ए के पास ज़्यादा एलिमेंट्स होते 4 या 5, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी आती. तो उसके लिए एक मेथड है. हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, दैट इज वी कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is equal to 2 and it is represented by m. Okay, तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, आई कैन राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए is equal to 2 raised to the power m, where m is number of elements in set A. So I can write 2 raised to power 2, which is equal to 4.
तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊँ, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस. फर्स्ट एग्जांपल इज सपोज वी हैव सेट A with elements A, D, F, H, and we have to find the number of elements in power set of set A. So number 1 we'll write number of elements in set A, which are 1, 2, 3 and 4. अब हम लिखेंगे number of elements in power set of A. is equal to 2 raised to power m, but m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, so I can write 2 raised to power 4. So इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16. So this is the method of how to find number of elements of power set of any set. Let's take another example. Suppose we have a set B with elements 1, 7, 9, 11 and 15. So in this case, number of elements in set A are 5. So number of elements in power set of A will be equal to 2 raised to power m, m की value of 5, which will be equal to 32. So this was all about number of elements of power set of A. So next example is number of elements in power set of A if A is an empty set. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, we'll write number of elements in set A which is equal to 0. So how do we find number of elements in power set of A? We write number of elements in power set of A is equal to 2 raised to power m. But in this case, the value of m is 0. So I'll write number of element in power set of A is equal to 2 raised to power 0, and any number raised to power 0 is equal to 1. So for an empty set, the number of elements of its power set is equal to 1. Let's see universal sets क्या होते हैं. Universal sets, यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हों, इंक्लूडिंग द सेट इटसेल्फ. So I can write a set that contains all the objects including itself is called a universal set. So for example, अगर हमारे पास है एक set of integers, तो इसका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? इसका यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें वो सेट इटसेल्फ और इस सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हो. तो हमें पता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ set of real numbers. So I can say that a set of real numbers is universal set of set of integers. So अभी तक हमने जाना कि कोई भी दो डिफरेंट सेट्स के बीच के रिलेशंस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन अगर हमें उसी रिलेशन को डायग्राम्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करना हो, फिर उन डायग्राम्स को बोलते हैं वेन डायग्राम. सो आई कैन राइट a diagram that represents all the possible logical relations between any two finite different sets is called a Venn diagram. So कोई भी डायग्राम जो किन्हीं दो सेट्स के बीच में, किन्हीं दो फाइनाइट सेट्स के बीच में जितने भी लॉजिकल रिलेशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करे, उस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम. वेन डायग्राम का नाम पड़ा है जॉन वेन के नाम पे, who actually created this method, hence the name Venn diagrams. और वेन डायग्राम्स में हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का. रेक्टेंगल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एंड सर्कल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स. ओके, नाउ दैट वी नो कि वेन डायग्राम्स में क्या क्या यूज़ होगा. रेक्टेंगल्स यूज होंगे टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट और सर्कल्स यूज होंगे टू रिप्रेजेंट डिफरेंट सेट्स. लेट्स सी एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 up to so on 10, and we have set A with elements 3, 9, 10
and 2, and we have another set B with elements 3 and 9. हमारे पास ये 3 सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी. अब हमें इनका रिलेशन रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की हेल्प से. तो वी नो इन अ वेन डायग्राम rectangle is used to represent the universal set. So I can write the elements of universal set as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स को. अब हमें रिप्रेजेंट करना है सेट ए को. तो सेट ए के पास कौन से एलिमेंट है? 3, 9, 10 एंड 2. 3, 9, 10 एंड 2. और सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स की हेल्प से. सो दिस रिप्रेजेंट सेट ए एंड देन सेट बी हैव एलिमेंट्स 3 एंड 9 विच विल बी रिप्रेजेंट बाय दिस सर्कल्स सेट बी. तो इस डायग्राम से हमें क्या पता लग रहा है कि जो सेट बी है वो सेट ए के अंदर इंक्लूडेड है, मीनिंग कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. नाउ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो सेट बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. हमें ये रिलेशन देखने की ज़रूरत नहीं थी ये बताने के लिए सेट बी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लूडेड होगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट मींस सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होंगे. सो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम विल बिगिन विद ऑपरेशन ऑन सेट्स. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.